हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विच टोटली बेस्ड ऑन फार्मूलाज. इट मीन्स whenever you have any derivative related, you have any function related inverse trigonometric, so once you should think that any formula applicable in that function or not. Are you able to apply any formula in that situation or not? Like consider an example. यदि हमारे पास y equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. If it is given function and we want to find derivative of this function, then I think it's very complicated to differentiate this function using chain rule. I think it is very complicated to differentiate this function using chain rule. If we want to differentiate this function using chain rule, then once we try, dy by dx equal to d tan inverse 2x upon 1 minus x square upon derivative of 2x upon 1 minus x square, and now d 2x upon 1 minus x square upon dx, and now apply here quotient rule. यहाँ पर आपको quotient rule apply करना है. So कहीं ना कहीं it is very complicated, it is very tough for us to differentiate this function. But if we apply formulas of inverse trigonometric function, then it is very easy. Then it becomes very easy. तो कहीं ना कहीं whenever you have any function related inverse trigonometry, if you have any function related inverse trigonometry, then once think about that is any formula related inverse trigonometry can be applied or not. If we are able to apply any inverse trigonometry formula, then apply, then try your best to apply the formula of inverse trigonometric function. So in this situation we can apply the formula of inverse trigonometric function. It is the formula of 2 tan inverse x. It is the formula of 2 tan inverse x, and now simply we can differentiate the function. So in one or two line we can easily find the derivative of this function. Similarly, we have many questions like tan inverse 2x upon 1 minus x square, or many function which is totally based on formula, inverse trigonometric formula. तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे फंक्शंस हैं जो कि कहीं ना कहीं फार्मूला बेस्ड है. इसके लिए आपको करना क्या होगा, जितने सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला है उसको आपको रिमेंबर करना हो, याद रखना हो. y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square, it is equal to 2 tan inverse x. It is equal to 2 tan inverse x. ये क्या हो गया, 2 tan inverse x का फॉर्मूला हो गया. y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कहीं ये तीनों फंक्शन मिले, ये क्वेश्चन रहेगा आपके पास, तो इसके जगह पर आपको ये लिखना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है. तो सो वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ tan इनवर्स 2x upon 1 minus square equal to 2 tan inverse x, and we can easily differentiate this function. Now we can easily differentiate this function. So derivative of 2 tan inverse x 2 upon 1 plus x square. तो ये आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि आपके पास फंक्शन दिया रहे और वो फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, जुड़ा हुआ हो, तो एक बार आप जरूर मन में सोचिए क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई करके उस फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. तो उस फंक्शन को देखिए हमने छोटा बना लिया और तब जा करके डिफरेंशिएट किया. तो ये बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करने का कोशिश करते हैं. y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. बिल्कुल जब भी आपके पास ये फंक्शन हो और यदि आपको सवाल में दिया रहे फाइंड dy बाई डी एक्स, तो बिल्कुल आप आसानी से इस फंक्शन के जगह पर लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x.
It is the formula of 3 sin inverse x, and now you can easily differentiate this function. dy by dx equal to 3 upon root under 1 minus x square. Okay, if we consider another question, y equal to cos inverse 4x cube minus 3x. If we have this function, then we can write in the place of cos inverse 4x cube minus 3x as y equal to 3 cos inverse x, y equal to 3 cos inverse x, and now we can easily differentiate the function y equal to 3 cos inverse. Derivative is dy by dx equal to minus 3 upon root under 1 minus x square. So whenever you have functions related inverse trigonometry, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि हम लोग वहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. यदि कर सकते हैं देन अप्लाई एंड देन डिफरेंशिएट, एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएट द फंक्शन. ओके, सो लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल्स, अनदर क्वेश्चंस. y इक्वल टू sec inverse 1 upon 4x cube minus 3x, 4x cube minus 3x. So simply we have a formula sec को cos में कन्वर्ट करने का. क्या होता है? sec inverse 1 by x इक्वल टू cos inverse x, sec inverse 1 by x इक्वल टू cos inverse x. तो आप क्या कर सकते हैं कि जो sec inverse 1 बटे इतना है, आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू cos inverse 4x cube minus 3x लिख सकते हैं, क्योंकि सेक को जब हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो x होता है वो उलट जाता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी वाला. एंड नाउ देखिए सेम क्वेश्चन है, इट इज y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला, टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन dy बाई dx इक्वल टू 3 कोफिशिएंट है तो 3 को ऐसे ही छोड़ देना है, 3 एंड cos इनवर्स x का -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चलिए यहाँ पर ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली ऑन द फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, बट वी हैव सम फंक्शन, कहीं ना कहीं आप उसको मॉडिफाई करके उस फॉर्म में लाएंगे एंड तब जा करके डिफरेंशिएट करेंगे. देखिए क्वेश्चन y इक्वल टू tan inverse 4x upon 1 minus 4x square, 4x upon 1 minus 4x square. You have to find derivative of this function. You have to find the derivative of this function. सो tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए इसको पहले हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2x लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर मीन्स 2x होल स्क्वायर. सो देखिए ये क्या लिखे 4x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x, और ये जो 4x स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर. ये देखिए फार्मूला क्या हो गया, ये फार्मूला आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो देखिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, x मतलब कितना हो गया ये आपका 2x. तो ये आपका फंक्शन जो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. ये जो फंक्शन दिया हुआ था हम इसको कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लाए, हम यहाँ पर लाए. अब इसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू 2 यहीं पर रह जाएगा, tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 2x के रिस्पेक्ट में एंड d2x
अपॉन डी एक्स। अब देखिए इजिली डिफ्रेंशिएट करके लिख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का कितना हो गया होल स्क्वायर इंटू इसे 2x का क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हो गया 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। और भी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा हम रिड्यूस करके क्या इस तरह के फॉर्मेट में लिखते हैं, टेन इनवर्स 2x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, x मतलब कितना हो गया रूट x। तो ये जो फंक्शन था, ये दिया गया फंक्शन, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लाए। ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन था, हम इसी फंक्शन को ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लाए। एंड नाउ वी कैन इजिली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। इसलिए dy बाय dx इक्वल टू 2 बाहर रह जाएगा, d टेन इनवर्स रूट x अपॉन डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, 2 इंटू डी टेन इनवर्स रूट एक्स बटे डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटे डी एक्स। तो ये आपका क्या हुआ, चेन रूल पर बेस्ड था। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये देखिए टेन इनवर्स एक्स, ये क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 वहीं रह गया इंटू 1 बटे 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो x हो गया। और फिर ये आपका रूट एक्स का क्या हो जाता है 1 बाय 2 रूट एक्स। तो सिंपली ये 2 ये और ये 2 कब का कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर होगा 1 बाय रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, 1 बाय रूट एक्स और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो इस तरह से सिंपली हम इजीली किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, एक बार सोच लें पहले कि क्या कोई फार्मूला सेट कर सकता है वहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है तो दिख रहा था टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा सारे क्वेश्चंस में और आप तब उस तरह से उसको फार्मूला वहाँ पर सेट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं इसी पर। देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स बटे 1 माइनस, एक मिनट, 2 पर पावर x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है 2 पर पावर x प्लस 1 तो 1 प्लस 4 पर पावर x, ये आपका सवाल है। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2 पर पावर x प्लस 1 बटे 1 माइनस 4 पर पावर x, ये आपका फंक्शन है। हम इसको क्या करेंगे, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए देखिए सबसे पहले क्या आपको याद होगा, ये फर्स्ट लाइन x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n, तो ये क्या हो जाता है x पर पावर m प्लस n, x पर पावर m प्लस n को आप क्या लिखते हैं x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n लिखते हैं क्या, ये बचपन में फार्मूला ये सब पढ़ते थे हम लोग। तो ये y इक्वल टू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन इनवर्स
2 पर पावर x इंटू 2। अब ये देखिए 1 माइनस ये जो 4 पर पावर x है, ये जो 4 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 4, इसको देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और पर पावर x। इस तरह से आपको एक बात और याद होगा यहाँ अच्छे से कि पावर पर पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। पावर पर पावर रहता है तो सिंपली पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 को इधर लिख दीजिए 2 इंटू 2 पर पावर x अपॉन 1 माइनस 2 पर पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले 2 लिखिए या पहले x लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पावर पर यदि पावर रहता है x पर पावर m पर पावर n, तो ये वही होता है जो x पर पावर m पर पावर n होगा, क्योंकि पावर पर पावर रहे तो सिंपली दोनों मल्टीप्लाई होकर x पर पावर mn कन्वर्ट होता है। सो वी हैव tan इनवर्स 2 इंटू 2 पर पावर x अपॉन 1 माइनस 2 पर पावर x होल स्क्वायर। इट इज़ द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आपका फंक्शन हो गया 2 tan इनवर्स 2 per power x। Now you can apply chain rule here। Now you can apply chain rule here, और इसको chain rule के मदद से chain rule अप्लाई करके हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए dy बाय dx, ये dy बाय dx कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 पर पावर x के रिस्पेक्ट में, और 2 tan इनवर्स 2 पर पावर x डिफ्रेंशिएट करेंगे d 2 पर पावर x इंटू डी 2 पर पावर x बटे dx। अब देखिए ये 2 वहीं रह गया, 2 1 बटे 1 प्लस 2 पर पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 पर पावर x का 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, 2 पर पावर x इंटू लॉग 2। तो ये आपका इस तरह से आंसर हो गया। ये 2/1 प्लस 4 पर पावर x, अब यहाँ पर 2 इंटू 2 पर पावर x log 2। ये इस तरह से फाइनल आंसर हो गया। आप इसको 2 पर पावर x प्लस 1 भी फाइनल करके लिख सकते हैं log 2 1 प्लस 4 पर पावर x। ये सिंपली इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब चलिए देखिए tan a प्लस बी वाला कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वहाँ पर tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, उसको आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन द फार्मूला, ऑन दिस फार्मूला। इफ़ वी हैव हियर माइनस यहाँ पर हो तो ये फिर प्लस माइनस इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये आपके पास एक फंक्शन है tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोचिए अच्छे से। हम इस फंक्शन को थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखिए ये 5x है, 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर को अच्छे से सोचिए क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 3x, 2x इंटू 3x। ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जरा सोचिए अच्छे से कि ये क्या है,
ठीक है, अच्छे से सोचिए ये क्या है। देखिए यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, देखिए tan इनवर्स क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका मतलब जब भी आपके पास ये कभी कहीं भी रहे, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो x के जगह पर कितना है, ये 2x, और y के जगह पर कितना है, 3x। तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, tan inverse 2x plus tan inverse 3x. Now you can differentiate both the function one by one. Separately we can differentiate the function. We have tan inverse 2x plus tan inverse 3x. We can differentiate both the term separately. So dy by dx equal to, हम दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। tan इनवर्स 2x, ये 2 यहीं रह जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 2/1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। सो इस इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन वेरी इजीली। एक और क्वेश्चन हम इस तरह से लेते हैं a प्लस बी वाला, जिसमें कि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी के फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। तो हम देखिए उसके बाद हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखिए इस तरह इजीली आप आसानी से इस तरह के फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं फार्मूला बेस्ड। तो कहीं ना कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। y इक्वल टू tan इनवर्स x1 माइनस 1 प्लस 12x स्क्वायर, 1 प्लस 12x स्क्वायर। ट्राई टू सेट ऑन फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, या फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। आप इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b पर भी सेट कर सकते हैं, x माइनस tan इनवर्स y। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, ये x है, एंड x को जरा सोचिए यहाँ पर 12x स्क्वायर है। ये आपका सबसे बड़ा क्लू है कि 12x स्क्वायर कहाँ से आया, 4x इंटू 3x। सो हम इस x को लिख सकते हैं 4x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 4x इंटू 3x। सो देखिए 4x माइनस 3x x एंड 1 प्लस 4 इंटू 3 12x स्क्वायर। सो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, a माइनस b अपॉन 1 माइनस ए बी। a के जगह पर 4x, b के जगह पर 3x, 1 प्लस 4x और 3x। सो y इक्वल टू tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। तो ये आपका क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू। अब हम देखिए इस फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए ये 4 कोफिशिएंट है, तो 4 को तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 1 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस है। अब ये देखिए 3x, तो 3 रखते हैं, 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4/16x स्क्वायर, 1 प्लस 16x स्क्वायर एंड 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। ये इस तरह से हम इजीली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फॉर्मूला बेस पर। y इक्वल टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिखा तो आपको तुरंत ये समझ में आया कि ये किसी चीज़ का फार्मूला है। किसका है? 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है। 3 tan इनवर्स x, ये किसका फार्मूला है? 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आपको फार्मूला याद रखें अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार उसको लिखें, फार्मूला को एक जगह कलेक्ट करें, बार बार रिवाइज करें। फार्मूला जितना ज़्यादा आपके पास कलेक्शन होगा उतना अच्छे से याद होगा, 12 में उतना आप बेटर मार्क्स कर पाएंगे, क्योंकि 12 में जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं बेसिकली आपको फार्मूला अलग अलग फार्मूलाज पर ही डिपेंड है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस से रिलेटेड फार्मूला, उसको याद कर लें अच्छे से और उसको रिवाइज करें बार बार।